جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر زکا صاحب میں آپ کے سامنے کچھ مہنگائی کی شرح اور چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت کی 2018 کے اندر مہنگائی کی شرح 4% تھی, جنوری 2020 میں 14% کی آپ کی حکومت کی, اور اب پھر یہ 10% پہ آ گئی ہے. ڈالر 115 روپے کا تھا, اب 168 روپیز کا ڈالر ہو چکا ہے. آپ کے دور میں پیٹرول کی قیمت جب آپ لوگ آئے تھے اس وقت 88 روپے تھی, اب اس وقت 100 روپے ہے. سونا جو ہے وہ 1,08,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے. حکومتی قرضے جب آپ آئے تھے 24,000 ارب روپے تھے, اب یہ حکومتی قرضے 35,260 ارب ہو چکے ہیں. اچھا جی, بیرونی قرضے اب جب آپ آئے تھے تو 95 بلین ڈالر کے تھے, اور اب اس وقت یہ بڑھ کر تقریباً 117 بلین ڈالر ہو چکے ہیں. یہ بیرونی قرضے ہیں. گردشی قرضے یہ تو سب سے زیادہ ہو گیا آپ کے دور کے اندر, 1900 ارب روپے کا گردشی قرضے ہو گئے. ان حالات کے اندر آپ پھر کہتی ہیں کہ جی انہوں نے یہ سارا کام خراب کر دیا. آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ کیا آپ نے اکانومی کے ساتھ. اب آپ نے سمجھنا نہیں ہے وہ بات. نہیں میں سمجھوں گا, میں سوال کر رہا ہوں, صرف سوال کر رہا ہوں. میں صرف یہ ہے کہ اس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے, اس لیے سوال کر رہا ہوں. بات کرنے دیں, انٹرپٹ کیے. جی پلیز. جب آپ مافیاز کو ٹیک آن کرتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں ہر شعبے کو مافیا چلا رہے ہیں. آپ نے پی آئی اے میں دیکھا کس طرح جھوٹے سرٹیفکیٹس دے کے آپ نے لوگوں کو جہازوں میں بٹھایا ہوا ہے, اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اسی طرح بجلی ہو, پانی ہو, آپ کی چینی, آپ جہاں مافیا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور مافیا بنتا کس طرح ہے؟ مافیا بنتا ہے اس میں آپ کے جو کرنے والے کاروباری ہیں, اس کے ساتھ حکومت کے اہلکار, اس کے ساتھ آپ کے سیاسی اہلکار, سب اوپر سے لے کر نیچے تک انگیج ہوتے ہیں, سب کو بھتے کا حصہ ملتا ہے. اسی طرح آپ کا قصور کا جو رنگ ہے, جو آپ کا پورنوگرافی کا رنگ ہے, وہ بھی چلتا تھا. اسی طرح آپ کا قتل و غارت کا جو سلسلہ تھا, خواہ وہ کراچی میں ہو, بلدیہ ٹاؤن اس کا حصہ ہو, یا وہ جس کا حصہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں ہو, جلانا. کس نے ختم کرنا تھا؟ وقت لگتا ہے. دیکھیے مافیا سے ایڈوانس لے رکھا ہے. انہوں نے مافیا سے تو ایک بار ایڈوانس لے چکے ہیں. ایڈوانس میں تو آپ نے مافیا کے پیسوں میں آپ نے الیکشن لڑا ہے, مافیا کے پیسوں میں آپ نے کمپین چلائی ہے. یہ آپ اپنا ذرا بتانے دیں. یہ ذرا جب آپ کا وقت آئے گا نا تو پھر پتا چلے گا کہ آپ گاجر کس نے کھائی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ پتا چلے آپ کو میں نے جانے دے جو سب کیا یہ حکومت باقی نان ایشوز کے اندر پھنس چکی ہے, اس کو عام آدمی کے ایشوز کا ادراک نہیں ہے, تو یہ مافیا کی بات کرتے ہیں حکومت میں, یہ کیوں نہیں. ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے جتنی گردان پڑی اور جو کچھ سنایا ہمیں قصہ, یہ پہلے دن سے ان کے لیڈر عمران خان ہر روز یہی سناتے رہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک خوشخبری سنائی تھی جس کا نام نوید کہتے ہیں, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 دن میں یہ سب چیزیں پوری کر دوں گا. یہ فکرہ تھا ان کا کہ 100 days میں میں ٹرن آؤٹ کر دوں گا, ڈاؤن کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, لوگوں نے 100 دن کا انتظار کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یو ٹرن لیتا رہوں تو وہ لیڈر بنتا ہے, پھر یو ٹرن آنے تو لیڈر نہیں بن سکتا. ملک کے مفاد میں یو ٹرن لینا پڑے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے ہر وہ چیز کی نفی کی جو آج تک وہ کہتے رہے, میں یہ کروں گا تو وہ نہیں ہوگا, مجھے پھانسی لٹکا دینا, سب چیزیں انہوں نے وہ ٹرن آؤٹ کی. بات یہ ہے کہ جتنی گفتگو کی گئی ابھی تک, یہ وہ سٹوری ہے جو ہر روز ان کی ہم 1-1.5 سال تک سنتے رہے ہیں. آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. میری بات سنیں نا, 1.5 سال تک سنتے رہے. 1.5 سال بعد آج ان کو خیال آیا, جس دن فواد چودھری نے اپنے انٹرویو دیا تو ان کو خیال آیا کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہمارے اپنے لوگ بات میں نے تو فواد چودھری کو نہیں کہا تھا, میں نے ان کے ایم این اے کو نہیں کہا تھا کہ جا کے تم روز ٹی وی پہ آ جاؤ اور آگے اپنی پارٹی کے خلاف بولنا شروع کر دو. کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جہاں ان الیکٹڈ لوگ اس وقت گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں اور جن کے انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ان کے پیسے انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے پیسے ریکور کر رہے ہیں, ان کا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نیگلیجنس کی انتہا ہے, گھبرانا نہیں ہے. اب تو گھبرانے کے بھی بہت سے جوکس چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈائریکشن لیس پالیسیز ہے. یہ کہہ رہے جی مافیا از اے بگر ورڈ. بھائی سب سے پہلے مافیا تو آپ کے ساتھ جو ایڈوائزر بنے ہیں ان کو آپ نے کچھ کیا. جس دن آپ کو پتا چلا کہ چینی کا اسکینڈل آیا تو جہانگیر ترین کو باہر کیوں جانے دیا, پھر اس کو ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا؟
किसी ने रोका था आपको? मैंने तो नहीं कहा था कि जी जहांगीर तरीन के लिए मैं बना, खुद ही आपने कहा कि जी मेडिसिन की महंगाई हुई, 200 रुपये की टीका लगा, उसको सेक्रेटरी बना दिया पार्टी का। तो मैंने कहा फिर दोबारा सेक्रेटरी बना दो, जिसे 200 रुपये की टीका लगाया। बात ये है कि अभी तक इनके डायरेक्शनलेस है। आज एक देखें बहुत बड़ा केस इनके ऊपर आया, सवात के अंदर इन्होंने एक मोटरवे बनाई जिसको ये बहुत क्लेम करते थे, बहुत जबरदस्त रहा है। आज वो उस चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुन ले, उन्होंने कहा मैं जब उसमें गया हूँ तो मैं तो हैरान हो गया, ये मौत का सामान है कि इस मोटरवे इतने खड़े, इतनी चीजें, यानी जिसपे वो क्लेम करते हैं कि हमने बात की बात है ना, इसमें तो क्लेम कर रहे थे ना, इतने ये फखर देखे हमने कैसी मोटरवे बनाई। उसी मोटरवे के ऊपर आज इनके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट आज की देख लें। बात ये है इनके कॉल और फेल में बहुत फर्क है। अली जदी साहब ने, सर मुझे सिर्फ ये बताएं, अली जदी साहब ने, आपको कहाँ मसला खराब कहाँ लगता है? इनकॉम्पिटेंस सबसे बड़ी बात है। इनकॉम्पिटेंस सारे नीचे तक सारी चेन खराब है। जब एक कहता है जी मैं करप्ट, या राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं है, बात वो कहते हैं मैं करप्ट नहीं हूँ, पहली बात है क्या जी जो मर्जी हो त्यागदार तो है ना। अच्छा चले ठीक हो, मुझे आगे बढ़ेंगे। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के मतलब क्योंकि परसेप्शन ये बनना शुरू हो गई है ओपोजिशन के नज़दीक, और उसको फिर पब्लिक के अंदर भी ज़ाहिर है, हम पब्लिक से जब बात करते हैं तो पब्लिक भी ये कहती है कि जनाब खुदा के लिए इनको कर गई, ये इमरान खान साहब के मतलब परसेप्शन मौजूद है। जब खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं फिर अपने सवाल को रिफ्रेस करूंगा और आपके सामने रखूंगा कि फिर ओपोजिशन लीडर क्या कर रहे हैं। एक ओपोजिशन लीडर साहब आपके जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, एक जेल के अंदर है, दूसरे आपके लीडर जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अवाम के रियल इश्यूज की तर्जुमानी आप अगर वो नहीं कर रहे तो आप तो कर ले सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनकी तर्जुमानी चाहे घर बैठे हैं, फील्ड में है, जहाँ भी तर्जुमानी तो हो रही है, लेकिन हमारी आखिरी हद तक ये ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट जो है हर के अपना टेन्योर पूरा करे, ये लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। ये ना कह दें कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला। इन्हें 2 साल गुजर गए हैं, पूरा टाइम मिला है। आप इस बात की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने ना कोई जलसे जुलूस हुए हैं, ना कोई धरना हुआ है, ना इन्हें तंग किया गया, ये नहीं कह सकते। लेकिन असल इनका मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का धरना हुआ और फिर खत्म हो गया, वो 2-4 दिन का ठीक है ना। वो मौलाना साहब तो शिकवा करते हैं कि जो सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन असल जो इशू है ना कि इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट। ये समझते हैं कि आप लोग अपने अपने लीडरों को बचाने के लिए सारा कुछ जद्दोजहद चल रही है। आज इमरान खान साहब ये ऊपर के 5-7 लोगों को एनआरओ दे दें, सारे मामला के पास सिवाय बोहतान तराशी के, इंतकाम के, कोई दूसरा इनके पास कोई जज्बा, कोई सोच, कोई एजेंडा है ही नहीं। ये आप जो कह रहे हैं ना कि नॉन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है। आज बताएं कि कौम का सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो दूसरी प्रॉब्लम कोरोना है, ये उस पर बात ही नहीं करते। ये बात करते हैं कि अच्छा जी आज आप देख लें कि GITs के ऊपर आज सारे मीडियाज के ऊपर वो अली जैदी साहब और सारे बैठे हुए हैं और डिस्कस क्या हो रहा है जी GITs कि जी असली GITs कौन सी है और गलत कौन सी है। इनको पता ही नहीं कि हमने कौम के मसाइल, दर्द ही नहीं दिल के अंदर। एक गरीब आदमी जितना मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, माजी में उसकी मिसाल ही मिलती है। आप देखें जरा कैमरा लेके बाहर जाएं कि किस तरह लोग इस गवर्नमेंट को किस तरह बददुआएं दे रहे हैं, किस तरह बुरा भला कह रहे हैं। जरा आप उनके जाके जज्बात पे गौर करें, इन्हें पता ही नहीं। ये अपने वो बनी गाला के महल से बाहर नहीं आते, गलियों में जाते। कभी बता दें कि इतने बुरे वक्त में कभी ये कभी किसी गली में, किसी बाजार में, किसी मोहल्ले में, किसी मार्केट में आपका प्राइम मिनिस्टर गया हो, आपका चीफ मिनिस्टर गया हो, ये सिर्फ बैठ के वहाँ बैठते हैं, 4 मीटिंग करते हैं, कॉफी पीते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत से काम। मसला ये है कि ओपोजिशन भी अपना हक अदा नहीं कर रही। ये अपोजिशन अपना हक अदा करेगी। लोग भी कंफ्यूज हैं। अब ये टाइम आ गया है, अब ये टाइम आ गया है, रेमेडी क्या है? अब ये टाइम आ गया है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, अपोजिशन बाहर आएगी, सड़कों पे आएगी। इस नाअहल हुकूमत को जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट बन चुकी है, इसको घर जाना पड़ेगा। डॉक्टर सरकार, इस कोरोना के हालात के अंदर अवाम की जरूरियात के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ है। सिर्फ सौदा सल्फ की चीजों के अंदर 33% इजाफा हुआ है। अवाम का असल मसला गुर्बत है, महंगाई है, अवाम का असला मसला जॉब है। आप लोगों ने नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियां ना दें, आप लोगों ने तो लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। ये अवाम दोस्त हुकूमत क्यों नहीं बन पा रही? अवाम के लिए रिलीफ किस तरह से मुमकिन हो पाएगा?
कि आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में कोई कोरोना की वबा नहीं आई। दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क इस वक्त घुटने टेके बैठे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वेस्टर्न यूरोप खत्म हो गया है, और माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क था जिसको इन्होंने, जिसके सारे बैंक अकाउंट भरे हुए थे, कोई इन्होंने कर्जे नहीं लिए थे, इन्होंने बेजा खर्चे नहीं किए थे, वो माशाल्लाह बिल्कुल वाकई इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कोरोना से। अब आप बात पीडीसी से लोगों को नहीं निकाल रहे, नहीं, मेरी आप एक बात सुनिए, मेरे स्टेटमेंट से लोगों को नहीं निकाल रहे, आप मेरी मुझे बात करने दें, निकालने। एक अगर आपका कोई किसी सही तरीके से आपने चलना है, इस मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को सेहत सहूलत कार्ड दिए, गरीबों के लिए 150 अरब का अमाउंट मुख्तस हुआ जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मिला। बिल्कुल मिला। इसके अलावा लोगों की जिस तरह से मदद की गई है, 200 पनाहगाहें बनी हैं। एक गरीब आदमी और जो मजबूर आदमी है उसकी मदद का पहली दफा, देखिए बात ये जरा अपना मुझे आप 10 अब आप का बता देखिए, दें। मैंने आपको 200 इंटरप्ट नहीं किया, 200 हो या 400 200 हो, बताए ना, आपको 200 अपने आपने महल ना, इसी- अच्छा आप पहले ये exactly साफ तो exactly करें। ये बता दें, अगर ये 200 बोलेंगे तो ये फिर 200 मुझे भी बता बोलना दें, आता है। मुझे मुझे ये बता दें, बताएं मेरे आप रायवेंड की जो आप- पनाहगाह है आप सबसे पब्लिक को बड़ी, गोरा ना करें आप ना, मुझे आप ये लोगों को। बताएं कि जो रायवेंड की पनाहगाह है सबसे बड़ी, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम ने अपने टैक्स से पैसे दिए, सड़कें भी उसकी हमने बनाई, दीवार भी उसकी हमने बनाई, घर भी उसका हमने बनाया, वो महल जो आपने पनाहगाह बनाए थे, इसहाक दौलत साहब का जो घर, अरे भाई आप पैसे, आपने पैसे खाए पाकिस्तानी अवाम का, जो आपने वादे किए थे, खून चूसा ये आपने, इसी आप से उसकी बाहर- बना देना आप पनाहगाह। इसी से बाहर हालात निकलने के लिए आपके आप बाहर कुछ कैसे सकते हैं, निकले, बता दें आप कि लोग आप पैसे अपना- वापस करेंगे। उसी देखिए, रात- ये रात को- पाकिस्तानी ये रात अवाम को के आपसे पैसे प्रॉब्लम किसने, नहीं है। अरे आप वापस उसी टैक्स कीजिए मनी से पैसे। बनी गाली की प्रॉब्लम मिसाल आपकी बनी क्या है। है? प्रॉब्लम आपकी वो ये तो है मैं कि आगे अब देखिए आपके कि करीब आ गया है। बनी गाला की सड़क मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी। इसी- ये देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट के दौर ये में बनी थी, तो एक ही थी। हुकूमत का काम होता है सड़कें बनाना, ठीक है। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये